हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. The present appeal directs challenge against award dated 6/8/2014 passed by the Motor Accidents Claims Tribunal, Sonipat, whereby application for grant of compensation in respect of injuries sustained by Pramod in a motor vehicular accident that took place on 30/9/2012 was dismissed on the basis of findings qua issue number 1 reads as follows: para, whether the accident took place due to rash and negligent driving of the tractor bearing registration number HR 10R 1178 by its driver respondent number 1 on 30/9/2012 within the jurisdiction of police station Mohana, Sonepat, resulting into injuries to petitioner Pramod as alleged (OPP para). The plea of appellant claimant is that on 30/9/2012 he was returning to his village Guhana on motorcycle bearing registration number HR 10T 1931 full stop. He was driving the motorcycle at a moderate speed full stop. When he reached in front of liquor vend of village Ratangarh situated along Sonepat Gohana Road, tractor trolley bearing registration number HR 10R 1178 driven by Krishan respondent number 1 in a rash and negligent manner came from behind and struck against motorcycle of the claimant full stop. Due to impact, claimant fell down on the road along with his motorcycle and sustained injuries full stop. Taking advantage of the situation, driver of offending vehicle fled away from the spot full stop. The claimant was taken to Patil Nursing Home, Sonepat, where he remained admitted as an indoor patient from 30/9/2012 to 3/10/2012 full stop. On the basis of statement of the claimant, FIR number 117 dated 1/10/2012 under sections 279, 337, 427 IPC was registered with police station Mohana against respondent number 1 full stop para. On completion of pleadings of the parties, the tribunal framed issues reproduced in para 6 of the award including issue number 1 noticed herein above full stop para. To discharge onus of issue number 1, claimant appeared in the witness box and examined Deepak PW5 and both of them reiterated that occurrence took place because of rash and negligent driving of offending vehicle by respondent number 1 before the tribunal full stop para. The tribunal in para 13 of the award has held reads thus para. After thoroughly going through the pleadings, documents and other material aspect of the case, I find force in the contentions of learned counsel for the respondents because Dr. Atul Patil in bracket RW2 bracket out has deposed that at the instance of injured / claimant, he was not medico-legally examined as his bike had struck against the stationary trolley full stop. Further, a perusal of indoor file exhibit R5
shows that the injured claimant had an alleged history of bike striking against a stationary trolley, full stop. Towards the end of the indoor file exhibit R5, Rakesh, nephew of the claimant slash injured, had given an undertaking on 30/9/2012 to the effect that he did not want to initiate any police proceedings as this case was not related to any quarrel, accident, or any other kind of dispute, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये आपकी 90 प्लस की स्पीड की डिक्टेशन है. परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, ठीक है. न लिख पाएँ तो हड़बड़ाइएगा मत. ये जो तैयारी चल रही है ना, जो डिक्टेशन आप लिख रहे हैं, इससे इजी आएगा, इजी स्पीड में आएगा एग्ज़ाम में. इतना कॉन्फिडेंट हो गए तो हम कह रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. पहली चीज़ तो जो नहीं लिख पाते हैं ना, या 80 की, या ये 80-85 कहते हैं, और जो 90 प्लस की डिक्टेशन में जिनको दिक्कत हो रही है, भाई इस पे हाथ चलाओगे तो एग्ज़ाम में हाथ चल जाएगा. परेशान ना होइए, ठीक है ना. वो क्या है कि क्या कहते हैं कि जब आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाइएगा तो 40-50 की स्पीड आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी. बस वही होने वाला है. जो डिक्टेशन हम दे रहे हैं इनको तन मन धन से लिखिए. एग्ज़ाम की डिक्टेशन आपको हलवा लगेगी. अभी फिर से हलवा बोल रहे हैं, ठीक है. एक्सेल में याद होगा आपको, बहुत हलवा खिलाएं आपको, ठीक है. तो इसमें भी हलवा ही मिलेगा, लेकिन लिखिए. अब डर जाइएगा नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा यार. कोई आपसे कुछ ज़मीन जायदाद, आपका 72 बीघा पुदीना तो नहीं छीन रहा है ना, कि नहीं हमको दो, तुम नहीं लिख पा रहे हो. तो ऐसा तो कर नहीं रहा है. लिखो. लिखने में ना पैसा खर्च हो रहा है और ना ही आपके पास से कुछ जा रहा है. आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, जितनी निकल रही है निकलने दो, ठीक है ना. आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना. आपको वहाँ जाके चेहरा थोड़ा, मुंह दिखाई थोड़ा ना करनी है. एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? जब स्पीड में लिखेंगे तो आपको वहाँ की स्पीड एकदम नॉर्मल लगेगी. अरे यार ये तो इससे तो ज़्यादा स्पीड में हम लिख के आए हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब शॉक आपको लग जाएगा. तो वो शॉक हम देना चाहते हैं एग्ज़ाम में आपको, ठीक है. तो वो तब आएगा जब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना. ये 85 और 90 की स्पीड में डिक्टेशन मत लीजिए, ठीक है. वो टाइम गया. वो टाइम जब था तब हम डिक्टेशन दे रहे थे. 50-51 डिक्टेशन हो रही है हमारी, ठीक है. तो उसके शुरुआत में जाइएगा आप, तो उसमें आपको 80-85 मिलेगा, 90 ही मिलेगा. लेकिन अब हम थोड़ा लेवल इसलिए बढ़ा दिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक. क्योंकि हम जान रहे हैं सीबीटी सबका निकलेगा. अब जो जिसने तो एक्सेल की वीडियो देखी उसका तो निकलेगा, जिसने नहीं देखी है भैया उसका राम जाने. लेकिन वो भी परफॉर्मेंस अच्छा किए होंगे. बाकी यूट्यूब चैनल भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सीबीटी निकलेगा. लेकिन सीबीटी निकलना थोड़ा ना है, डिक्टेशन भी तो निकलना है ना. तो उसके लिए तैयारी कीजिए और गंभीरता से कीजिए. मतलब हलवा, इतना हलवे को हलवा समझने की चीज़ अलग है. अब तैयारी को हलवा समझ लेंगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना. हर चीज़ थोड़ा ना हलवा होती है. चलिए इस पे आते हैं, डिक्टेशन में क्या दिक्कत है. नाम ओम इसमें जो आए हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं. सोनेपत बहुत इजी है, सर्किल एन और पी हाफ, ठीक है, ऑन द लाइन. और क्या है मोहाना में एम डाउनवर्ड एच और एन पूरा बनेगा, ठीक है. और एन में दैट की वॉवल लगेगी. पुलिस स्टेशन आप सबको पता ही है. गोहाना भी ऐसे ही बनेगा, गे डाउनवर्ड एच और एन का स्ट्रोक पूरा, ठीक है. ट्रैक्टर ट्रॉली ये सब तो इजी है, आप लोग को ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो. और कोई इसमें नाम हम आया है? अतुल पाटिल टी अपवर्ड एल, अतुल, ठीक है. पाटिल भी PTL, पटियाला जैसा पाटिल भी बनेगा, ठीक है. और क्या है? राकेश, अपवर्ड RK और सर्किल राकेश, और पेन की वॉवल के आफ्टर में, ठीक है. और कुछ है? और कुछ नहीं है. दीपक DP और K, थ्रो द लाइन DP और K पूरा बनेगा दीपक, ठीक है. अब देखिए इसमें बारीकियां क्या है मैटर में, जैसे हम आपको कुछ बता दें, क्योंकि हम हर वीडियो के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं. देखिए यहाँ पे रेड्स एज फॉलोज लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में. तो रेड्स एज फॉलोज का मतलब ये है कि ये नीचे वाली लाइन को दिखाना चाहता है. जहाँ पे भी फॉलोज आए या रेड एज, जैसे अब क्या बताएं हम, ऐसे दिमाग में भी तो नहीं आता है. रेड्स 10 आए, ठीक है. तो मतलब जिससे भी ऐसा लगे कि ऊपर वाला पैराग्राफ अपनी कुछ बातें नीचे बता रहा है,
ठीक है, अगले पैराग्राफ में बताने वाला है, वहां कोलन लग जाएगा, सेमी कोलन नहीं, कोलन लग जाएगा। ठीक है, सिंपल है, याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसी कोई चीज पैराग्राफ के बाद आए जिसमें कि ऊपर वाले पैराग्राफ के लास्ट में कुछ नीचे वाले से मेंशन करने के लिए कहा गया हो, वो समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक। आप लोग सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो, आपको सबको इतना पता है कि ऊपर अगर कुछ दे रहा है और उसके पैराग्राफ की एंडिंग में कुछ ऐसी सिम्पटम्स दे रहा है जिससे लगे कि वो नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेट कर रहा है, तो वहां कोलन लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे कोलन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये देखिए, पुलिस स्टेशन मोहाना, कॉमा सोनेपत है। तो मोहाना एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसके सॉरी एक जिले का नाम या किसी भी चीज़ का नाम होगा, गांव का नाम है, कोई भी थाने क्षेत्र का नाम है, उसके आगे कॉमा लग गया, उसके बाद सोनेपत दिया है। तो इसको समझिएगा, जब भी ऐसे बीच में आए गांव, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर किसी भी एरिया का नाम, तो उनके बीच में कॉमा से उसको अलग किया जाता है। ठीक है, ताकि पता चलना चाहिए ना कि ये कहाँ पे किसका है और कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बीच में कॉमा लगा है, इसको आपको समझना है। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको याद करोगे आप तो कॉमा की मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ में बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन का आर भी कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर HR, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फोकस डाला गया है, पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, इसलिए आर को कैपिटल होना चाहिए, लेकिन स्टेनोग्राफर महोदय हैं, उन्होंने किया है ऐसा, अच्छी चीज़ होगी उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। कभी भी नंबर आता है, जैसे रिस्पोंडेंट नंबर 1 आया तो रिस्पोंडेंट में आर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो है लोग, अच्छा ऐसा भी होता है कि कभी कभी हाई कोर्ट जो होता है ना, अपना मोड ऑफ लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ना, उसको भी कॉपी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे रिस्पोंडेंट नंबर 1 ये हमने बताया कि आपको कैपिटल है तो वो कैपिटल रहेगा, लेकिन असल में होता क्या है कि हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है और वो चीज़ चलती चली आती है। अब क्या है कि जज और स्टेनोग्राफर अपने सीनियर्स को देखते हैं तो उसी को कॉपी करने लगते हैं, तो उन्हीं सब का कारण है कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट स्मॉल में है, जबकि रिस्पोंडेंट भी कैपिटल में होना चाहिए। नंबर किसी के साथ भी आता है तो वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब रिस्पोंडेंट के ऊपर पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे नाम भी कैपिटल्स में होते हैं। ठीक है, और कोई भी एरिया का नाम भी कैपिटल होता है, किसी हॉस्पिटल का नाम भी कैपिटल, मतलब प्रॉपर नाउन सभी कैपिटल होते हैं। अब देखिए जैसे FIR नंबर दिया है इसमें, है ना, पैराग्राफ 2 के सेकंड लास्ट लाइन में भी FIR नंबर दिया हुआ है। FIR पूरा कैपिटल में दिया है, कहीं कहीं FIR स्मॉल में देता है, FIR हमेशा कैपिटल में आता है। अब देखिए ये अंडर सेक्शंस है ना, अंडर सेक्शन हमने पुरानी वीडियो में बताया है कि अंडर सेक्शन, ऑफ सेक्शन, एंड सेक्शन, दिस सेक्शन, दैट सेक्शन, ये सब में सेक्शन कैपिटल होगा, लेकिन सब सेक्शन स्मॉल में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे यहाँ देखिए रेड्स 10 आया तो 10 में भी कॉलन लगा है, मतलब कि ये नीचे कुछ रिलेट कर रहा है। ऊपर वाला सेंटेंस, ऊपर वाला पैरा नीचे वाले पैरा को दिखाना चाह रहा है कुछ, इसलिए वहाँ पे कोलन लग गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे ये राकेश के, अब हमने बताया था आपको पुरानी वीडियो में, नाम के आगे भी कॉमा लग जाता है। ठीक है, जैसे किसी कोई बंदा है, उसका डेजिग्नेशन है, तो बंदे का नाम कॉमा फिर डेजिग्नेशन फिर कॉमा। ठीक है ना, मतलब कॉमा तब तक लगेगा जब तक कि उस बंदे के बारे में बताया जा रहा है, और अगर नहीं बताया जा रहा है तो बस एक कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राकेश कॉमा नेफ्यू ऑफ द क्लेमेंट, मतलब राकेश को इन्होंने यहाँ तक अपनी बातें बताई, उसके बाद उसको एलोबरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। अब देखिए जैसे एग्जिबिट R5 है, एग्जिबिट को EX भी लिख सकते हैं, EX डॉट, और एग्जिबिट पूरा भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो एग्जिबिट ये भी कैपिटल में बनेगा। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, मतलब अलग से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कागज़ जोड़ा है, उस कागज़ का नाम आपने रख दिया एग्जिबिट R5। ठीक है, इसलिए वो एग्जिबिट कैपिटल में है, वो भी पर्टिकुलर है इसलिए उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप पूरी वीडियो देखा करो। वीडियो हम बकवास करने के लिए नहीं बनाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें दे देते हैं। ठीक है, हाँ बकवास तो रहती है ज़्यादातर वीडियो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बकवास के साथ साथ इन्फॉर्मेशन देने में दिमाग में ज़्यादा घुसता है तेज। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद तो आपको आ नहीं रही है फिर भी कर दीजिएगा, लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और मिलेंगे फिर अगले डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच।